بھائی جی ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے جو موضوع زیر بحث تھا وہ ملک کا تعلیمی نظام تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نجی تعلیمی اداروں کے جو معاملات اور مسائل ہیں اس حوالے سے بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ پروگرام کا یہ جو حصہ ہے اس کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ صحت کے حوالے سے معاملات کے اوپر گفتگو کر سکیں۔ تاہم آج وہ موقع نہیں مل سکے گا معزز مہمان، کیونکہ آج ہمارے ڈاکٹر سلمان صدیقی صاحب آج غیر حاضر ہیں، تو ان کی جگہ آج ہم بات کریں گے دیگر معاملات اور موضوعات پر۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ سماجی نوعیت کے جو معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جا سکے۔ معزز مہمان جو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے ہیں، آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ ایک سماجی کارکن ہیں، اور نہ صرف سماجی کارکن ہیں جو سماج میں اپنی خدمات جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو معاملات ہیں واقعتاً جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ تکالیف کا سامنا ہے۔ اچھا، یہ خود ساختہ ہیں، یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ سڑکوں کا جگہ جگہ ٹریفک جام ہونا ہے سڑکوں پہ، اور اس طرح کے جو دیگر مسائل ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہم خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو ان معاملات اور مسائل کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، اس کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں جناب نذیر بھٹی صاحب کا۔ تشریف فرمائیں نذیر بھٹی صاحب جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھٹی صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ بھٹی صاحب ابھی جیسے میں نے نشاندہی کی ایک معاملے کی آپ کے تعارف میں، کہ جو سماج میں زیادہ تر مسائل ہیں یہ خود ساختہ ہیں، یعنی کہ خود ہمارے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ سڑکوں کا جا بجا ہمیں ٹریفک کا جام نظر آنا اور مختلف اس حوالے سے یہ آپ یہ سمجھ لیں لاپرواہی ٹھیلوں کو جگہ دینا اور پھر اس سے پیسے کمانا اور یہ سب کچھ کرنا، یہ ایک الگ بات نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے جو ہم اپنے طور پہ، یہ جو ہمارے اینڈ سے جو کام ہو رہے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے، اس کی روک تھام کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے؟ میں چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں کہ 21 ٹی وی چینل کا اور یاسر بھائی آپ کا اور مینجمنٹ کا، جو مجھے موقف بیان کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یاسر بھائی، ہم ایک دوسرے کے اوپر غلطی تھوپنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ میری غلطی ہوگی تو میں یاسر صاحب کے سر تھوپنے کا عادی ہو چکا ہوں، میں خود ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ یہ بہت بڑا فقدان ہے، اور بہت بڑا یہ آپ کے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سمجھ لے کہ ایک دروازہ کا لاک ہے آپ کے پاس، کہ آپ نے بولا میرا کیا ہے، وہ تو اس کا کام ہے، جبکہ وہ میرا اپنا کام ہے۔ جس حوالے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ عوام الناس کا اس سے ڈائریکٹ وابستگیاں ہیں، اور ان کی دشواریاں پریشانیاں، یہ ان سے بڑے لوگوں کے لیے تو سنگل بند ہو جاتے ہیں روڈیں سارے پروٹوکول کے ساتھ۔ میں پتھارا مافیا پر معزز عدالت سپریم کورٹ نے بھی برہا آرڈر کر رکھے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوئر کورٹوں کے لیے یہ المیہ ہے، فکریہ ہے، اور ڈپارٹمنٹوں کے لیے جو کہ یہ سیکٹریز بیٹھے ہوئے ہیں اس کی مینجمنٹ اور عدلیہ کے وقار کی بلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، یا اس کے عمل درآمد کے لیے، تو ان کے اوپر یہ سوالیہ نشان ہے کہ جب معزز عدالت اگر وہ کھانس دے تو وہ بھی قانون بن جاتا ہے۔ تو آپ کے یہ جو پتھارے، فٹ پاتھ، عوام کی جگہ ہے، یہ آپ نے بالکل اس کو وہاں پر فرنیچر مارکیٹس، وہاں پر فوڈ مارکیٹس، وہاں پر شنواریز مارکیٹ اور رکشا اسٹینڈ، انلیگل ایکٹیویٹی جو بھی ہو رہی ہے، اور آپ کے پتھارے، اور جیسے کہ آج کل گیس پہ فقدان آیا ہوا، میں نے اس میں مختلف اتھارٹیز کو درخواستیں بھی دے رکھی ہیں، انکوائریاں بھی ہو رہی ہیں، میں نے کورٹوں میں بھی ان کے خلاف اسی معاملے میں گیا ہوا ہوں، اور انہوں نے مجھے بے تحاشا ہراسمنٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ کو تو پتہ ہے میں اللہ کی رضا کے لیے چل رہا ہوں، ہر دن آخری سمجھتا ہوں، تو میرا کیا کریں گے یہ مافیا، کیونکہ یہ تو خود ایک کرپٹر مافیا۔ تو حضور، اس کے لیے جو اتھارٹی بھی موجود ہیں، قانون بھی موجود ہیں، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ جو اتھارٹیز ملک چلانے میں کردار ادا کرتی ہیں، قانون کے پاسداری کے لیے کام کرتی ہیں، ان کو ایکشن لینا ہوگا کہ یہ ہمارے قانون کا دوہرا معیار کیوں اور یہ مذاق کیوں اڑایا جا رہا ہے ہمارے معزز عدالت کا۔ میں آپ کو ایک ایک نشاندہی کر سکتا ہوں، جو ایک ایک پوائنٹ جگہ کی، یہاں سے آپ کے آتے ہوئے ملینیم مال سے یہاں تک آپ دیکھیں گے رکشا سٹینڈ، ٹریفک پولیس چوکی اور شنواریز اور یہ سارے چیزیں جو بنی ہوئی ہیں، یہ سب میرے عدالت معزز سپریم کورٹ نے منع کر رکھی ہیں۔
पूरी पूरी सर्विस रोडें बंद हैं, फर्नीचर मार्केट, लाखों रुपए माहना, कुंडा माफिया, उसमें इनलीगल कनेक्शन, जो बिजली का बिल आप और हम। मैं तो इस सरमाए को, बिखरे सरमाए को, करप्शन की नज़र हुए हुए सरमाए को डेली बेसिस पे करोड़ों रुपए की इनकम है। यासिर भाई अगर मौजूद अदालत इस पर नज़रसानी कर ले और तालीम पे ये पैसा लगाए, इन्हीं रोड रस्तों पे ये पैसा लगाया जाए, तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक कानून पे नज़रसानी करनी है कि इनका एक क्राइटेरिया बनाया जाए, उस क्राइटेरिया से कोई हटके काम नहीं करेगा। और वेयर हाउस का एक तरीकाकार फंड रेसिंग का, मेरे मुल्क दिवालिया कर चुके हैं ये हमारे प्यारे हुक्मरान, प्यारे हुक्मरान। तो अल्लाह इनको हिदायत तो नहीं देने वाला, बाकी उसके राज तो वो बेहतर जानता है। बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं लगता कि इस मौजूदा सिस्टम के अंदर कोई हमारे ऊपर इंसान और मुसलमान मुसल्लत हो, बेईमान और करप्ट अनासर हमारे ऊपर मुसल्लत है। अवाम का बुरा हाल है, रोड रस्तों की क्या बात कर रहे हैं, ना दवाई है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना इलाज है, ना इंसाफ है। मैं अभी कुछ देर पहले ही सोच रहा था कि ये जो इदारों में रिश्वत ली जा रही है और रिश्वत के मुताल्लिक ये बड़ा सख्त हुक्म है कि लेने और देने वाले दोनों जहन्नुमी हैं, लेकिन ये जो ज़बरदस्ती लोगों से तलब की जा रही है, इसका क्या किया जाए? कोई भी शख्स खुशी से जो है वो रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं है। ये इस हद तक मजबूर कर देते कि उसके बिना आपका कोई भी काम, अब बाकी पाकिस्तान का तो मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, वास्ता इतना नहीं पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पे कि कोई काम आपका मुमकिन है ही नहीं। क्या किया जाए बताएं? सर, इसमें आवाम का बहुत बड़ा रद्द-ओ-अमल और इसमें किरदार है। हम मजबूर करते हैं एक ऑफिसर को या पुलिस ऑफिसर को ही कह लें कि खुदा के लिए हमसे रिश्वत लो, अल्लाह का वास्ता हमारे छोटे बच्चे हमसे रिश्वत लो। वो नहीं लेना चाहता, वो अपनी कानूनी ड्यूटी कर रहा है, आपके पास लेसन नहीं है, हेलमेट नहीं है, कागजात नहीं है। हमारा भी तो मिजाज ऐसा ही है, जैसे मैं कह रहा हूँ जी। तो हमारे पास अगर वो चीज़ नहीं है तो हमने क्या करना है, उसको ज़बरदस्ती उसको खर्ची देनी है, चाय देनी है। उनकी आदतें हमने ख़राब करी हैं। हम अपना किबला अवाम दुरुस्त कर ले, अवाम में अवेयरनेस और शऊर आ जाए कि नहीं ये गलत अमल है, देने और लेने वाले दोनों जहन्नमी है। पर मुनाफिकीन हम समझते हैं 1400-1800 साल पहले की बातें हैं कुरान मजीद में, ऐसा नहीं है। वो आज तक रहती दुनिया तक ये हमारे रहनुमाई है और ये हमारे लिए इल्म का यही सारा खजाना है। वो ये वही मुनाफिकीन हैं जो उधर जाके कहते हैं अल्लाह तू मालिक है, तू कारसाज है, यहाँ कहते हैं कि हम खुदा परस्त बुत बन के बैठ जाते हैं, नौज़ बिल्लाह। तो ये वो जो ईमान से खारिज लोग हैं, वरना मैं नहीं समझता कि रिश्वत तो लानत है। मुल्क वो तरक्की नहीं कर सकता जिसमें रिश्वत का बाजार सरगर्म और तालीम का जो है तबाह हाल स्ट्रक्चर हो, वो कौमें आगे नहीं जाती। ये दो बुनियादी जुज़ हैं जो हमारी तरक्की पे, हमारे नौजवान पे, हमारे इन फ्यूचर कानून की। देखें, अभी कायनात पब्लिक राइट्स ने आवाम और नास की भलाई के लिए जो इतनी घुमसान की जंग में फंसी हुई है, पता नहीं है किसकी कौन मदद करेगा, कौन नहीं करेगा, किसको रहनुमाई के लिए दरख्वास्त दें, कौन मदद। तो KPR ने अभी एक कार्ड रिसेंटली अभी ऑन कर रहे हैं हम लोग, हमें एक खसूसी जजेस एक्ट, पुलिस एक्ट 2002 में और मजिस्ट्रेट एक्ट में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसमें हमारे को रिस्पेक्ट देने की बात की गई है, ख़ासकर हमारे को ये इदारे ओब्लाइज करें, हमारा मसला हल करें। मेरे पास लीगल टीम भी मौजूद है, इंशाअल्लाह उस कार्ड का मेंबर जो हमारा बनेगा उसको लीगल फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। बहुत खूब। माजूर टांगों हाथों से जो हैं उनके लिए वो भी एक हमारा मुआवजा क्या होगा कि किसी नाबीना का इलाज करा दो, किसी मोहताज का काम आ जाओ, किसी असीर के रिहाई के लिए काम कर लो, तो ये हमारा KPR का मुआवजा होगा। वो कार्ड बनाएं और अपने अपने एरियाज़ के अंदर अवामुल नास के लिए भलाई के रास्ते दिखाएं उनको। लोगों को रास्ते पता नहीं है कि हमारे DC के पास क्या अख्तियारात हैं, UC के पास क्या अख्तियारात हैं, हमारे प्रोफेशनल के साथ क्या हमारा लेन देन है या क्या। हर कोई दिहाड़ी के पीछे लगा हुआ है, क्योंकि हुक्मरानों ने इतना तो हमारा जीना हराम कर दिया है। यासिर भाई, मैं ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़ी सख्त बात है कि हमें तो सब कुछ एक्ट में मौजूद है, हमारे जो कानून है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बदबख्ती के साथ साथ वैल्यूएशन हो रही है हमारे कानून पे। ये इदारे उनको अब आँख खोलनी होगी। हमारा कोई भी अब गुटका जी, इस तरफ कल भी मैं रिपोर्ट देख रहा था जी, गुटका का एक मुलजिम को उम्र कैद की सज़ा है, फांसी की सज़ा है, और आपके सामने गुटका पूरी कराची के अंदर बिक रहा है। बिल्कुल ऐसा ही मुख्तलिफ ग्रुप्स में खबरें आती हैं जी। अच्छा, अब देखें ये कितनी बड़ा दोहरा मयार है। एक को सजाए मौत लगी हुई है और दूसरा सरेआम आप जब जो चाहें। ये तो छोटी बात कह रहा हूँ मैं गुटके की, और भी मंशियात की दीगर चीज़ें आसान दुकानों पे मिल रही हैं।
पेट्रोल का मैं चीखता रहा कि पड़ोसी ममालिक से ले लें, डीजल वहाँ से ले लें, वही पेट्रोल ईरानी कराची में बिक रहा है, वही डीजल बिक रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। उसका एक मखसूस हिस्सा उस करप्ट अनासिर माफियाज को जो मुसल्लत हो के हमारे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज बन के बैठे हैं या डिवीजन को देख रहे हैं या सूबे को देख रहे हैं, उनकी करप्शन के लिए वो वहाँ जमा हो रहा है। कौमी ख़जाने के लिए कुछ नहीं हो रहा है। मेरे मुल्क की सलामती, तरक्की, बेहतरी और अवामुल नास की भलाई के लिए कोई अथॉरिटीज़, कोई ऐसी फिजिबिलिटी नहीं बनाई गई कि फ़ंड रेसिंग करो, ये अपनी गुर्बत का ख़ात्मा करो, तालीम आम करो, ताकि ये इंसाफ लोगों को पता हो हम हमारे हकूक़ क्या हैं। हमें हकूक़ नहीं पता। हमें अपनी जिम्मेदारियां आवाम को पूरी करनी होंगी, और हमारे जो अफसर बन के बैठे हैं वो अफसर नहीं है, वो हमारे खादिम हैं, हमारी रहनुमाई के लिए बैठे हुए हैं, हमारे लिए आसानियों के लिए बैठे हुए हैं। उसके लिए देखना पसंद नहीं करते आप। जी, उसके लिए हम आवाम को एक जत्था बना के यकजहती के साथ पहले तो हम अपने आप को दुरुस्त करें ना। बिल्कुल सही। तो सामने वाले की देखें, मैं दिल बर्दाश्ता नहीं होता, मैं कदबुत में तो छोटा हूँ, मेरा हौसला बहुत बड़ा है। मेरी एक छोटा सा मसला है, मेरे घर में आग लगाई गई थी, छोटा सा तो नहीं है मेरे लिए तो दुनिया ही, उसकी FIR अभी तक दाखिल नहीं हुई। वो एक करप्ट, हर भेड़िए होते हैं दीगर इदारों में, उसने वहाँ से रिश्वत वगैरह लेके एक जगह पर मेरा उसमें क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन मैं कहाँ हिम्मत हारने वाला। मैंने DIG साहब को दोबारा इंक्वायरी की दरख्वास्त दी कि जो अनकरीब हो जाएगा मेरा भी मसला, लेकिन दिल बर्दाश्ता नहीं होना। अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, अफसरान के ऊपर अफसरान मौजूद हैं, आप कंप्लेन करें, एक ने नहीं सुनी, दूसरा सुनेगा, तीसरा सुनेगा। फुल एंड फाइनल बात है, आपके पास मीडिया मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है। आप जब मुसलमान और एक इंसान पाकिस्तानी बन के किरदार अदा करेंगे तो आपकी रहनुमाई अल्लाह करेगा और ये आवाम आपकी करेगी। अब आवाम के लिए नहीं करते, हम अपने आप को निखारने के लिए, अपने इलेक्शन जीतने, अपना दुकानदारी चमकाने के लिए बात करेंगे। आवाम अब बेवकूफ़ भी नहीं बनेगी, और आवाम को अब खुद अपनी सलाह करनी होगी। रोड रास्ते हमारे, पानी हमारा, बिजली हमारी, गैस हमारा, ये सब बंद है, नहीं मिल रहा है। वही पेट्रोल 100 रुपए लेके आप 300 रुपए में बेचो, मेरे मुल्क का कितना बड़ा इसमें आपको पता है कि बेनिफिट होगा और कि हमारा कर्जा रहेगा? नहीं रहेगा। पथारों को अगर फिजिबिलिटी बनाई जाए, इसकी तरतीब डेली बेसिस पे ये 50 करोड़ रुपए का रिकवरी होगा। 50 करोड़ कम बोल रहा हूँ, डेली बेसिस पे ये आपकी करप्शन की नजर हो रहा है। ये पैसा आपको फुटपाथ पे पड़ा हुआ है। आप मुल्क की बेहतरी के लिए, गुर्बत के खात्मे के लिए, माजूरों और मोहताजों के लिए, बेवाओं के लिए, यार एक पानी जो आप यहाँ है बड़े बड़े बने हुए हैं आप बेच रहे हैं, वो बेवाओं के लिए सिर्फ मुख्तर कर दें। कोई बेवा आपके लिए ज़कात लेने नहीं आएगी, वो उसी इदारे के साथ मुंसलिक हो जाएगी। आप राशन का जिम्मेदारी दे दें, उनको गुर्बत के खात्मे के लिए महंगाई का कंट्रोल दे दें। आप जो NGOs हैं जो काम कर रही हैं, उनको मौके फराहम करें, और आवाम को भी देखें। मैं कुछ नहीं कर सकता, हम सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब किया जाए ना, सवाल ये पैदा होता है कि जैसे अब यहाँ महकमे इस हद तक मजबूत हो चुके हैं और इतने ज़्यादा कानून से बालातर हो चुके हैं। बिजली का महकमा देख लें, शहर कराची के अंदर जो है इसकी बिजली, जो मैं इसको कहता हूँ लोड शेडिंग की कंपनी जो है, ये मनमानियाँ जा रही हैं अपनी मर्ज़ी से, जिसको चाहें जितना बिल उठा के भेज दें। किसके पास जाएँ, किससे सवाल करें? ना कोई अदालत का हुक्म चलता है, अदालत ने हुक्म दिया लोड शेडिंग नहीं करो, मुस्तकिल लोड शेडिंग हो रही है। पैदावारी सलाहियत का क्या हुआ, ये तो आगे की बातें हैं, तो बड़ी मुश्किल बातें हैं जो खैर लोगों को तो अब समझ में आ गया, लेकिन करें तो क्या करें? फिर इसी तरह और दीगर इदारों के अंदर आप बात कर लें, आप करके देख लें किसी महकमे के अंदर किसी के ऊपर कोई वो चलता ही नहीं है, अदालती फैसले मौजूद हैं। पथारों के हवाले से आपने तस्करा किया, आपके सामने देख लें क्या कुछ हो रहा है शहर के अंदर। आप फरमाइए क्या किया जाए, कैसे पाबंद कैसे करेंगे? सर, ये शमसी तवानाई के जो भी प्रोजेक्ट शुरू से लेके अब तक बनाए गए हैं, जितने भी हमारे हुक्मरान, इन्होंने उसके अंदर लाइफ टाइम इंश्योरेंस कराया है अपनी नस्लों का जी। आवाम का सौदा किया है, लाइफ टाइम अपने नस्लों की इंश्योरेंस की है। अरबों रुपए का बिल वो वसूल महाना कर रहे हैं। ना कुछ उन्होंने एक यूनिट पैदा किया कभी, ना कभी होगा। बिल्कुल ठीक है। जो बिजली हमें फराहम की जा रही है उसकी 11,000 की कैपेसिटी ही नहीं है, तो आप कैसे 11,000 से भी ज्यादा दे सकते हैं? ज्यादा का आप हमसे फ्यूल चार्ज और दीगर चार्ज और टैक्सेस का तो नाम ही नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये मुल्क को और आवाम को गरीब करने में कि इलेक्ट्रिक, जिसका अब नाम है, खूनी नाम है, इसको कलम बंद करार होना चाहिए, इसका लेसन कैंसिल होना चाहिए, ये फलाही इदारों को या हुकूमत अपनी तावील में ले। इसका बहुत बड़ा किरदार है गरीब को गरीब करने में, खुदकशियां करने में, गुर्दे बिचवाने में बिजली वालों का।
मैनेजमेंट का, बिजली का कोई कसूर नहीं है, मैनेजमेंट जो हमारी ये कलम चलाती है, जी जी, इनका वो अंजाम का इबरत बनाने का ज़रूरत है कि जो कि फिर कोई ऐसा अमल ना कर लेकिन सके। कर नहीं सकेंगे इसको ना। अगर बिजली का निज़ाम आप ठीक कर रहे हैं तो आपकी 80% गुर्बत ख़त्म हो रही है। नहीं तो कैसे करेंगे अब सर सवाल ये सिर्फ पैदा आपने ये होता जो बिजली का हमारे ऊपर मुसल्लत कर रखा है गुंडागर्दी का टैक्स, ये हमें इस्तिस्ना करार दें। है। नहीं दे सकते, हम सवाल ये हम पैदा बिजली होता नहीं है चलाना कि चाहते, हमें आप ज़बरदस्ती बिजली के ऊपर लगा दिया, जो चलाए वो भी बिल दे, जो ना चलाए वो भी बिल ज़्यादा दे। दे। अच्छा मज़े की बात बताऊं, मेरे घर का आज 2 साल हो गए, मीटर कटा हुआ है, लेके चले गए क्योंकि वो मेरा घर दूसरा बंद था उस जी टाइम। जी, 2 साल से मुसलसल बिल आ रहा है यूनिट के हिसाब से, 4 लाख रुपया हो गया, जो कि ना मेरा बिल है, ना मैं यूज़ कर रहा हूँ, ना कनेक्शन है वहाँ पर मौजूद। तो अंधों का रोना, आंखों की खराबी। हम अंधों के शहर में आईना बेच रहे हैं यासिर भाई। अब हमारे साथ इस पे अमल दरामद कौन करवा रही है? इस माफियाज को दहशतगर्दी 780 का इनके ऊपर सेक्शन लगना चाहिए। ये जो ज़बरदस्ती वसूली करते हैं, पर्ची माफिया जिसको आपने अर्ज किया, 780 का कानून मौजूद है इसके अंदर। जो आपसे कोई भत्ता तलब करता है, कोई आपको इस किस्म की पर्ची, तो जगह जगह भत्ता लिए जा रहा है, आप गाड़ी 2 जी, मिनट के लिए रोकें, वो आ जाएंगे, अदालत कुछ का फैसला है टाइम कि आप इस पे पैसे नहीं ले सकते, हर जगह तो कोई जी पैसा ऐसे चल ही है। रहा है। जैसे पार्किंग की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है, लेकिन वो ले रहे हैं। एक डीआईजी साहबान थे, आईजी साहबान, उन्होंने बहुत कुछ साल पहले एक ऑर्डर किया था कि जो कराची के बीटर्स थे, जो बीट वसूल करते थे, उनको बंद करने का अमल शुरू किया। तो 10-12 साल तक तकरीबन ये माहौल थमा रहा। अब दोबारा वो पांव उठा रहा है। ये नहीं, तो जब चल रहा था सिलसिला तो हाँ, कभी लेकिन रुका ही वो नहीं। किसी हद तक थम सा गया था। अच्छा, नहीं, बग़ैर ऐसा नहीं नहीं काम नहीं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी प्रैक्टिकल चल बात रहा है। बता रहा हूँ। अच्छा 80% तकरीबन वो क्लोज हो चुका था। अच्छा। जो हम बाकी जबरदस्ती वाले लोग हैं, सर ये रख लें, सर मेरी तरफ से ये मिठाई है, वो रह गया था। बाकी जो जबरदस्ती वाला माहौल था वो थम गया था। अब वो दोबारा तो शुरू हो रहा है। मेरे जो मौजूदा सिस्टम के एडिशनल आईजी साहब हैं, आईजी साहब हैं, लैंड एनफोर्समेंट एजेंसियां जितनी भी काम कर रही हैं, ये बहुत बड़ी लानत है और ये बहुत बड़ा बदनामी का बायस है वक्त हुकूमत के लिए। अच्छा, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं कल इनकी परफॉर्मेंस का जायज़ा ले रहा था, एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा था कि इनका सक्सेस रेट है कितना इनके डिपार्टमेंट्स के अंदर। ये जो ब्यूरोक्रेसी आपकी बैठी हुई है, इनकी आप प्रोग्रेस देखें, किसी भी डिपार्टमेंट से, आप पुलिस से स्टार्ट करके देख लें, क्राइम आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। आपको ये जितने भी इलीगल ड्रग्स हैं, ये सारे आपको सोसाइटी में पहले से ज़्यादा नज़र आएंगे। और अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड का मैं कल देख रहा था, मुझे बड़ी, मैं क्या कहूँ कि वो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा और ये किया जाएगा। एंड रिजल्ट क्या है पहले ये तो बताएं, कंक्लूजन क्या सामने लेकर आएँ, इसके बारे में भी तो ज़रा बताएं। रिकॉर्ड तो आपने मेंटेन किया, बल्कि रिकॉर्ड तो उसी वक्त मेंटेन हो जाना चाहिए जब उसका नाम किसी मुकदमे में आता है। पूरी दुनिया में सिलसिला है, तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एंड रिजल्ट क्या है, ये इसके बारे में भी ज़रा कुछ बताते कि इसका क्या नतीजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मॉनिटरिंग तो आप ठीक है कर रहे हैं, मॉनिटरिंग तो शुरू से ही ये कही जाता है कि आपको करनी है, ये तो आपका काम है। और वह सीरीज़ ऑफ फेलियर है, लेकिन प्रोग्रेस अगर देखी जाए तो क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट इनकी निकाल के ज़रा दिखाएं, आवाम के सामने लाएं कि जिन डिपार्टमेंट्स में इन लोगों को लगाया गया है उसकी परफॉर्मेंस क्या थी। 3 साल या 4 साल बेस ईयर बना लें 2016 को, उसके बाद से आज तक का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, आपको पता जाएगा इनकी परफॉर्मेंसेस क्या है। और फिर प्रमोशंस आप देखें कि टेंडेंसी हमारे यहाँ प्रमोशंस की है क्या, इन इदारों के अंदर जाके इनकी परफॉर्मेंस, डीसीज़ की आप परफॉर्मेंस जाकर देखें, उसके एरिया के अंदर क्या परफॉर्मेंस है वो आपको पता जाएगा। लेकिन प्रमोशंस जो हैं वो हो रही हैं, तो बड़ी अजीब सी बात है कि प्रमोशंस जो हैं वो मिल रही हैं। प्रोग्रेस अगर आप जाके देखें 0/0 सबकी नज़र आ रही है। डिपार्टमेंट्स की आप हाल देखें, रोज़ बरोज़ अबतर होते चले जा रहे हैं। किसी भी आप महकमे में जाएँ, जितने भी ये सिंध के अंदर महकमे जाके प्रोग्रेस रिपोर्ट निकाल कर देखें, आपको पता जाएगा। लेकिन सबकी जो है वो प्रमोशंस, भट्टी साहब ये बड़ा कमाल है कि बच्चा हर साल क्लास में फ़ेल हो रहा है, लेकिन उसको जो है वो प्रमोट करके जो है वो दे रहे हैं, और ना सिर्फ उसको अगले उसमें भेज भी रहे हैं, बल्कि उसका जनाब मज़ीद खर्चे भी बढ़ते चल जा रहे हैं, उसके अल्ले तलल्ले भी बढ़ते जा रहे हैं। ये सिलसिला है क्या ये हमारे यहाँ, तो समझाएं। यासिर साहब, एक्चुअली 2 पोस्टिंगें होती हैं हर डिपार्टमेंट में, एक आका परवरी और एक सेल्ड है। जो आका परवरी में आएगा, यस सर, नो सर तो उसने सीखा ही नहीं सीखा, वो प्रमोशन भी होगा, उसकी अगले ओहदों पे तरक्की भी होगी, मर्रात भी होगी, रिहायशी और फ्यूल एडजस्टमेंट और बंगले का रिहायशी बावर्ची सब दिया जाएगा। जो आका परवरी नहीं करता, मेरिट की बात कर रहा है और पानी चोरी की बात कर रहा है, करप्शन हो रही है उसकी बात कर रहा है, तालीम की बात कर रहा है, उसको OSD बना दिया गया कि आप यहाँ मॉनिटरिंग करो बैठ के, आपको कोई वो नहीं, सिर्फ पुटअप करो। तो ये हमें जो हमारे
मुसल्लत होती है एडमिनिस्ट्रेशन हम पे, सिर्फ आवाम का काम नहीं है इसमें, हम सब सॉफ्टवेयर सबका अपडेट होने की ज़रूरत है। मेन जुमला बात करूँगा, विद आवाम, इदारे और जितनी भी हमारी स्ट्रेटजी मुल्क चलाने वाले बना रहे, उनका सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हो, और फर्स्ट प्रायोरिटी पे आवाम की आसानी और भलाई और खिदमत के लिए जो पैराग्राफ हों उस पे अगर अमल किया जाए तो आवाम सुधर जाएगी। सर हमारी आवाम लकीर की फ़कीर है, अभी हम भागने लग जाएंगे, हमारे पीछे सारे भागने लग जाएंगे, तो हम तो नहीं पूछेंगे ना भाग क्यों रहे हैं, ये तो वाकई आपने सही तो कहा। हम फिर भूल भी जल्दी जाते हैं। हाँ ये बात तो है। तो हमें उतावले क्यों होते हैं, हम किसी के लिए आलाकार क्यों बनते हैं? हम शऊर रखने वाले पढ़े लिखे मुहब वतन पाकिस्तानी हैं। हमारा मुल्क का वकार को और हमारी इमेज को देखा जाए, खुदारा इन हुक्मरानों ने हमारे पासपोर्ट का खाना ख़राब कर दिया। हमारा तालीमी स्ट्रक्चर, हमारा इंसाफ के मामलात, हमारी एजेंसीज जो हैं वो बेहतर काम कर सकती हैं, करने नहीं दिया जा रहा है। अभी मैं सेनेट में देख रहा था एक प्रोग्राम, वो नेब से परेशान है कि इख्तियारात ना दे, तो बनाया क्यों है ये इदारा? नेब को खुला खुला इख्तियारात दें, गैर सियासी, और इदारों को गैर सियासी होना होगा, जो कि बहुत बड़ा है। एक मैं गैर सियासी हो जाऊंगा तो मेरा हुक्म कौन मानेगा, मेरे बच्चों के लिए कोई प्रोटोकॉल कौन लवाजमात, स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं कौन बच्चों को, तो ये ये तो जब ड्यूटियां हैं। कल्चर खत्म होगा, आपको ये जहर है, या तो सुप्रीम कोर्ट अवामुल नास की भलाई के लिए कोई एक्शन ले, या तो कोई ऐसा हमारे ऊपर पीएम सीएम जीएम मुकर्रर हो जाए। कर सकते हैं ना। सवाल तो ये कि सारे यार इससे सब मुस्तफीद हो रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सब इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, तो ये कौन अपनी रोजी पे कौन लात मारेगा? अब ये बताएं कि ये काम सारे, जैसा भी आपने बताया, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं, सरकारी गाड़ियों भी इस्तेमाल हो रही हैं, सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन कौन करेगा अकाउंटेबिलिटी? सवाल कौन करेगा? जो जिन्होंने करनी है वो खुद भी इसी को एंजॉय कर रहे हैं सारी चीज़ों को, तो मैं कैसे उम्मीद रखूँ कि ये उसके खिलाफ पूरे कुछ लावा करेंगे? का लावा बिगड़ा हुआ है। हमारे अक़वाम मुत्तहिदा ये जो भी पॉलिसियाँ बनाती है मुल्क के लिए, जो हमारे बैंक्स हैं या जो हमारी फंडिंग करते हैं, मुल्क एक इलाका है मुल्कों का कुछ, वो साफ साफ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हम तो इतने बड़े ढीठ बन चुके हैं, हम उनकी बातों को खातर ख्वाह में नहीं लाते। जब हमें पैसे चाहिए होते हैं, हमें फंड चाहिए होता है, तो हम उनके फिर पाँव पकड़ लेते हैं। अगर वो कोई तलकीन करते हैं कि आवाम की भलाई, तो सुनाई नहीं देता। अगर वो कहते हैं कि टैक्स बढ़ाओ, बिजली बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, तो ये कर, तो फौरन बगैर सोचे समझे वो आपकी डील हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे एक जो ब्रिकेस वाला पैकेज है ना, वो हमारे को खराब किया हुआ है। उसके लिए या तो खलाई मखलूक उतरे, बिल्कुल ठीक है, या तो फिर हम नौजवानों को ये किरदार अदा ये बड़ी अच्छी बात है। मैं भी इसकी तरफ आता हूँ। भट्टी साहब, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, और ब्रेक के दौरान भी आपने ब्रेकिंग न्यूज़ मुलाहिज़ा की। बेलारूस के जो सदर हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं, और सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो इस वक्त जारी हैं। और इसके साथ साथ जो कुछ शहर इक़्तिदार में हो रहा है, अफसोसकुन बात है कि जो कुछ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, एहतजाज वगैरह। बहरहाल इसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ भी बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। यकीनन जमहूरी हक़ है, लेकिन जगह का इंतखाब और ये सब कुछ जो है, ये सारे मामला देखने की ज़रूरत है। बड़े मोहतात अंदाज़ में यही कुछ कह सकता हूँ, बहुत कहने के लिए तो बहुत कुछ है, इंशाल्लाह आगे बात होगी। नज़ीर भट्टी साहब तशरीफ़ फरमाएं। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, समाजी कारकुन हैं और बहुत सारे समाजी मसाइल की निशानदेही भी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे मामलात का भी हमें इल्म होता है जिसके बारे में यकीनन किसी की नज़र जो है वो नहीं उसके ऊपर पड़ती, लेकिन ये सब कुछ भी हमारे यहाँ हो रहा है। ये भट्टी साहब कुछ देर पहले हम जैसे मामलात जिसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, गाड़ियों की चोरी है, ये वो मसाइल, बहुत तेज़ी से इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। कैसे इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? दर्जनों आपके पास ऑफिसर्स मौजूद हैं, एक सिस्टम मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद फेलियर की क्या वजह है? मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी बात हो। जी यासिर भाई, हर अथॉरिटी और हर डिपार्ट के पीछे एक मिनी डिपार्ट बन गया है ना, जी जी, जो अयाकारी, चोरी चकारी में मुलविस रहता है, चाहे वो प्राइवेट माफिया हो, चाहे वो अफसरान पर मुश्तमिल हो। इसके लिए हम सबको अमल करने की ज़रूरत है।
جو گاڑیاں چوری کا مسئلہ ہے بہت آسان ہے. اگر ہمارے حکمران یا ہمارے ادارے گاڑی کمپنیز کو پابند بنائے کہ لاکھوں روپے میں کروڑوں روپے میں آپ ایک گاڑی بیچتے ہو, لاکھ روپے کی تو موٹر سائیکل بیچتے ہو, ایک ٹریگر آپ اس میں ایسا لگاؤ جو آپ کی گاڑی چوری نہ ہو, ذمہ داری کمپنی کے اوپر عہد کر دیں کہ وہ کمپنی بیچ سکتی ہے مال جو کہ چوری کی گاڑی کی میں بدل میں گاڑی دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل سے چوری بند ہو جائے گی. پر یہ جو چوریاں کروا رہے ہیں ان کی روزی بند ہو جائے گی, کیونکہ یہ بھی ایک مافیا ہے جو آپ کی بیک موٹر سائیکلیں لاکھوں کروڑوں آپ کی تھانوں میں پڑی ہوئی ہیں. میرے پاس آپ کے پاس آفس آنے کے لیے گاڑی نہیں ہے, قسطوں پہ ہم 15-20 دیکھیں ہمارا پاس کنٹرول کرنے کے لیے بھی ریموٹ کنٹرول ہے اور بوسٹ دینے کے لیے بھی ہمارے پاس یہاں پر ایک بہت خوب. ہم ٹریک سے ہٹ گئے, ہم یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. بہت خوب. اس کرائٹیریا سے ہٹیں گے جب جیلیس ڈگری مافیا پہ کام کریں گے ہم, جب تعلیم کی بات کریں گے, دیہی علاقوں تک آپ کی صحت اور تعلیم پہنچے گی, اس دن سے آپ اسٹیبل ہونا شروع ہو جائیں. بہت خوب. شہر سے کچھ نہیں, دیہی علاقے سے وارڈ یو سی پسمند, وہاں سے جس دن صحت کا اور تعلیم کی سسٹم آپ کا شروع ہو گیا, آپ دیکھیں گے کہ بس ایسے ترقی اور ہمارا ملک بوسٹ مارے. یہ دو چیزوں کا فقدان ہے. جہاں تک انصاف کی بات کر رہے ہیں آپ, ادارے بھی موجود ہیں. ہماری سی پی ایل سی, انٹی کار لیفٹنگ سیل, رہبری سیل, فلانی سیل, فلانی سیل, فلانی سیل, لاکھوں روپے کا آپ ان کو, کروڑوں روپے کا جب بجٹ آپ ان کا پرزنٹ کر رہے ہیں. یا تو ان کی کوئی ذمہ داری لگائیں کہ ریسپانسیبل ہوں. یہ تو خود رات کو باندھتے ہیں رسا اور صحیح گاڑی کو گھسیٹ کے چلے جاتے ہیں, وہ صبح بندہ چوری ہو گئی, ایف آئی آر کٹاتا ہے, گاڑی ملتی ہے ادھر. دیکھیں مافیاز کو جب تک آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے, اس کا سدے باب نہیں کریں گے, تو آپ مزے لوٹتے رہیں گے. آپ کرسی کا گھومنے والی کا کہ کتنا آ رہا ہے, فیول ایڈجسٹمنٹ میں کتنا آ رہا ہے, مینٹیننس میں کتنا. اب تو تنخواہیں تو ہر بندہ بھول گیا. ماہانہ اخراجات جو ہیں ڈسٹرکٹ کے جو مالک ہیں وہ بولتے ہیں فیول میں اس میں جو ایکسپینس آئے. ابھی یہ دیکھیں جمہوریت کا حسن ہے احتجاج, پر ایک کرائٹیریا کے اندر, ایک طریقے کا. ملک میرے کا بدحالی کا سامنا ہے, انڈسٹری آپ کی تباہ ہے, روزگار آپ کا نہیں ہے, صحت آپ کی نہیں ہے, ہسپتال آپ کے, وہ کیا بتاؤں کہ جس کو مرنا ہو وہ ہسپتال کی طرف چلا جائے, علاج کو چھوڑ دیجئے, وہ بن چکے ہیں. جلاد کا نام میں دوں گا. اور جو فلاحی پرپز پہ جن کو آپ نے اربوں روپے کی لینڈ الاٹ کر دی, وہ بہترین آپ کا بزنس والا علاج کر رہے ہیں. 5 لاکھ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ہاں یہ بات آپ نے صحیح کہا, اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ کی ایجوکیشن جو آپ کو آرٹیکل 24 میں 25 میں 27 کر کے آپ فری آف کاسٹ, مطلب غضب خدا کا پلاٹ آپ کو دیا گیا تھا کہ آپ ایک فلاحی ادارہ بنائیں گے, اس کے نام پہ جگہ لی گئی, فری آف کاسٹ علاج کریں گے. وہ پاکستان کا مہنگا ترین ہسپتال بنا ہوا ہے. آپ جائیں, یہ ہم حکمرانوں کو معلوم نہیں ہے. ان کے علاج فری ہیں, جن کو ایکشن لینا چاہیے. ان کے بچوں کے بھی پیکیج ہیں اور وہ کارڈ ہیں ان کے پاس. جی سر ہمیں سفارشی کلچر سے نکلنا ہوگا. دیکھیں ہمارا جو کاپی کر رہا ہے نا ہمارے پیارے رسول اکرم لیڈر محمد عربی کو, اس کی سنت وہ یہودی کر رہا ہے, اور اس کو ہم مانتے ہیں. تھوکتے بھی نہیں ہیں ان کے ایریے میں, چائے پی کے کپ بھی نہیں پھینکتے ان کے, کیونکہ فوراً آپ کو پرچی ہاتھ میں مل جاتی ہے, آپ کی انٹری بند ہو جاتی ہے. یہاں پر تو آپ نے جو کام کرنا ہے وہ سریعام کرنا ہے. ہماری پولیس, ہمارے دیگر جو ادارے جو ملازم ہو چکے ہیں الیکٹڈ کے, فرما بردار ہونا چاہیے, ملازم نہیں ہونا چاہیے. ہم ان کے ذاتی ملازم بننا چھوڑ دیں. ہم سرکاری ملازم ہیں, ہم عوام کے پیسوں سے ٹیکس سے ہم سارا کچھ مرات لیتے ہیں, اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. عوام کو تو ہم آنکھیں دکھاتے ہیں, ڈنڈے مارتے ہیں, ان کو بند کرنے کی دھمکی دیتے ہیں, ان کو ذلیل کرنے کی بات کرتے ہیں. عوام کو عزت دو, غریب کو عزت دو. ہر پاکستانی کی عزت جیسے قانون اور آئین میں برابر ہے, اسی طریقے سے دیو نا. آپ اسمبلی میں بن کے بت بن بیٹھتے ہو فرعونوں والا, اور جب باہر نکلتے ہو تو پارسا بن جاتے ہو, کسی غریب یتیم معذور کے ساتھ پکس بنا کے آپ وائرل کرتے. یار یہ شعبدہ بازیاں چھوڑو, ریل پہ آپ ملک اور عوام کی خدمت کرو. میرے ملک کا آپ نے بہت اسٹرکچر خراب کر دیا, دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اربوں روپے کے آپ یہاں سے کما کے جو باہر ملک آ رہے ہیں, یار آپ کا جب یہاں اب مینجمنٹ نہیں چلانی, آپ کو جہاں کا ذمہ داریاں نہیں نبھانی, عوام کی غربت کو نہیں دیکھتا, تو آپ حکمرانی. آخری میسیج نوجوانوں کے لیے, کیونکہ ابھی جیسے میں نے بات کی وہ گفتگو بڑی لمبی ہو جائے گی, وقت ختم ہو گیا ہے نا, کیونکہ احتجاج اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جیسے بھی آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ملک تو متحمل ہو ہی نہیں سکتا اب ان ساری چیزوں کا,
وہ دور چلا گیا، اب کیا کیا جائے، آخری نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ ویسے تو خدا کا شکر ہے کہ اب سمجھ آ گئے، کوئی اتنا نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی کیا پیغام دینا چاہیں؟ نوجوان، میری بہنیں، میری مائیں اور نوجوان کو اب اٹھنا ہوگا، نہیں اٹھا تو اس کا مستقبل، اس کے بچوں کا بھی تاریخ ہے. اب اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا ہے، حقوق کے لیے اب ضروری ہے، اپنے حقوق ہر حال میں لینے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ لینے ہیں، اور میڈیا کا ساتھ دینا ہے. میڈیا کے پلیٹ فارم آپ کو یہ تو بلیک میل نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ لے کے چلیں، آپ ان کو بے نقاب کریں، ایماندار کو اپریشیٹ کریں، بے ایمان کو آپ شیم کریں، اس کی نشاندہی کریں، دل برداشتہ نہیں ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے، دل برداشتہ نہیں ہونا، یہ ہے باٹم لائن، یہ سب میں زیادہ ضروری ہے. بٹی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا اور شامل گفتگو رہے، اور خاص طور پہ سماجی نوعیت کے جو مسائل تھے اس کے اوپر بڑی کھل کر ہم نے گفتگو کی ہے. اب پروگرام کا وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے، تو کل انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو ضرور اور دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.